السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز تقی اور میں ہوں مدورانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ اپنے آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ اور آپ کو بتائیں، بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو قونصل رسائی کا معاملہ، بھارت نے پاکستان کی دوسری قونصل رسائی کی پیشکش قبول کر لی۔ بھارتی ناظم الامور دفتر خارجہ پہنچ گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اون شیرازی سے۔ جی اون شیرازی، بتائیے گا کلبھوشن یادو کی قونصل رسائی کا معاملہ کیا پیش رفت ہوئی؟ جی اعتزاز، بالکل دیکھیے، بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے حاضر سروس جو ہے آفیسر کمانڈر کلبھوشن یادو، ان کی بات کریں تو آج ان کو دوسری جو ہے قونصلر رسائی پاکستان کی جانب سے بھارتی سفارتی حکام کو آفر کی گئی تھی، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے بھارتی ناظم الامور جو ہے وہ دفتر خارجہ پہنچے ہیں اور انہوں نے یہ پیشکش جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ کلبھوشن یادو سے ان کی ملاقات کے لیے یعنی قونصلر رسائی کے لیے ابتدائی طور پہ انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں اور عین ممکن ہے کہ آج ہی ان کو قونصلر رسائی دے دی جائے۔ اہم وجہ یہ ہے کہ 19 تاریخ کو جو ہے وہ بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن یادو کی جو ریویژن پٹیشن ہے اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس کی لمٹ جو ہے 19 تاریخ کو ختم ہو جائے گا اور وہ ہے رحم کی اپیل۔ اس سے قبل بھی کلبھوشن یادو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ریویژن پٹیشن میں نہیں جائیں گے بلکہ رحم کی اپیل کریں گے، تاہم پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم 19 تاریخ تک انتظار کریں گے۔ دوسری جانب بھارتی سفارتخانے کی جانب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارتی وکیل جو ہے وہ کلبھوشن یادو کو پاکستانی عدالتوں میں جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے، تاہم پاکستان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس بات سے بھارت کو باقاعدہ طور پہ آگاہ کر دیا گیا اور یہ بھارت کو کہا گیا کہ پاکستانی وکیل ہی اس کیس پہ پیش ہوگا، تاہم بھارتی وکیل اسسٹ کر سکتے ہیں، عدالت میں موجود ہو سکتے ہیں، تاہم وہ دلائل نہیں دے سکتے۔ تو اب یہ بڑی جو ہے پیشکش پاکستان نے کی تھی، کیونکہ اگر بات کریں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے 46 نمبر پیرے کی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھارتی جو جاسوس ہے اس کو قونصلر رسائی دی جائے، تو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ایک سے زیادہ بار، بلکہ پاکستان اب اپنے طور پہ جو ہے یہ دوسری بار رسائی دے رہا ہے اور عین ممکن ہے کہ ملاقات آج ہو جائے۔ جی بہت شکریہ اون شیرازی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ورکرز ویلفیئر بورڈ خیبر پختونخوا کے ملازمین سے متعلق مقدمات میں ریمارکس دیے۔ کہتے ہیں کہ لگتا ہے سارا کے پی کے صرف سرکاری ملازمت ہی کرتا ہے، کسی سرکاری ادارے میں وزراء کے سفارشی برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ورکرز ویلفیئر بورڈ گھوسٹ ملازمین سے بھرا پڑا ہے۔ رپورٹ کریں گی سہرش خان۔ جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ورکرز ویلفیئر بورڈ کے پی کے ملازمین سے متعلق مقدمات کی سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس میں کہا کہ ورکرز ویلفیئر بورڈ بھرتیوں میں وزراء کا کیا کام ہے، مزدوروں کا پیسہ سیاسی رشوت کے طور پر پھینکا جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کسی سرکاری ادارے میں وزراء کے سفارشی برداشت نہیں کریں گے۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے پی کے میں کرپشن اور اقربا پروری عروج پر ہے۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ گھوسٹ ملازمین سے بھرا پڑا ہے۔ تمام بھرتیاں سیاسی ہیں یا پھر افسران نے اپنے رشتہ دار بھرتی کیے۔ لگتا ہے سارا کے پی کے صرف سرکاری ملازمت ہی کرتا ہے۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ افسران کو ذرا شرم نہیں آتی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کرپٹ ترین ادارہ ہے، کوئی ملازم بھی قانون کے مطابق بھرتی نہیں کیا گیا۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ تحلیل کر کے تمام افسران کو فارغ کر دیں گے۔ بڑی بڑی تنخواہیں لینے والوں نے ادارے کی کوئی بہتری نہیں کی۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ میں مزدوروں کا پیسہ ہے، اس لیے حکومت دلچسپی نہیں لیتی۔ عدالت نے 294 اساتذہ اور دیگر تعلیمی عملے کی برطرفی کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں۔ سہرش خان، سچ نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ نے اسٹیل ملز ملازمین کی ترقیوں سے متعلق کیس میں وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اسٹیل ملز سے متعلق بنایا گیا منصوبہ صرف تباہی ہے۔ ملازمین کو اس طرح نکالا تو 5000 مقدمات بن جائیں گے، ایسا ہوا تو اسٹیل ملز چت ہو کر رہ جائے گی۔ سپریم کورٹ میں پاکستان سٹیل ملز ملازمین کی ترقیوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سٹیل ملز سے متعلق بنایا گیا منصوبہ صرف تباہی ہے، زیادہ ہوشیاری سٹیل ملز انتظامیہ کے گلے پڑ جائے گی۔ پاکستان سٹیل ملز تمام ملازمین کو نہیں نکال سکتی، ملازمین کو اس طرح نکالا تو 5000 مقدمات بن جائیں گے، ایسا ہوا تو سٹیل چت ہو کر رہ جائے گی، ایسا نہ ہوا سٹیل ملز انتظامیہ کو برطرف کیے گئے ملازم ہی دوبارہ رکھنے پڑے۔ کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔
लाहौर हाई कोर्ट ने फ्लोर मिल्स पर 17% सेल्स टैक्स आयद करने के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फ्लोर मिल्स पर 17% सेल्स टैक्स आयद करने का मामला अदालत पहुंच गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेल्स टैक्स रूल्स के मुताबिक आटे समेत दीगर अशिया को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। रूल्स के तहत फ्लोर मिल्स पर टैक्स आयद नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार के वकील ने नुक्ता उठाया कि पंजाब हुकूमत आटे की कीमतों को कम करने के लिए मुख्तलिफ कमेटियां बना रही है और दूसरी तरफ फ्लोर मिल्स ने 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया, जो कि बदनीयती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तिदा की कि पंजाब हुकूमत के इस इकदाम को कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए पंजाब हुकूमत को फ्लोर मिल्स पर आयद सेल्स टैक्स वसूल करने से रोकते हुए हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। कोरोना और महंगाई से सिसकती आवाम पर एक और बहरान के साए बढ़लाने लगे। ऑयल टैंकर्स ने मुल्क भर में तेल की सप्लाई बंद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खतरा पैदा हो गया। हो जाए तैयार, एक और बहरान पेश नजर है। तैयारी कर लें, लाइनों में खड़े होने की, धूप से बचाव का भी इंतजाम कर लें। पहले पेट्रोल बहरान की इंक्वायरी अभी शुरू ही हुई है कि एक और की बाज़गश्त सुनाई देने लगी है। ऑयल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन शमस शाहवानी ने मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा है कि आज पूरे मुल्क में तेल की तरसील नहीं होगी। हुकूमत हमारे मुतालबात पर नजरसानी करे, जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तेल की सप्लाई बंद रहेगी। शम्स शाहवानी ने कहा कि 48 घंटे बाद मुल्क भर में तेल की किल्लत हो जाएगी। हम मजबूरन एहतजाज कर रहे हैं। हमने हुकूमत से बार बार मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत ने हमारी न सुनी, लिहाजा तंग आकर हड़ताल का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सूबाई सर्विस और टूल टैक्सेस को फिलफौर खत्म किया जाए। 1 नवंबर 2019 से अब तक किरायों में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ, उनमें भी इजाफा किया जाए। यहाँ आपको बताएंगे, मुल्क में एक बार फिर पेट्रोल बहरान का खदशा। कराची के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेल की सप्लाई बंद कर दी गई है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने आजाद कश्मीर और जीवी की भी सप्लाई बंद कर दी है। कोरोना की वजह से हमें माली तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से हमें किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं कामरान चौधरी से। जी कामरान चौधरी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी तेल की सप्लाई बंद कर दी गई? जी बिल्कुल, कराची के बाद जो है वो खिता कोटुहार रीजन के लिए जो तेल की सप्लाई की जाती है ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से, उसको भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ साथ कोटुहार रीजन से ही जो है वो तेल की सप्लाई जो है वो इसी रूट से जाती है आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए, वो भी बंद कर दी गई है। ऑयल टैंकर एसोसिएशन जो कोटुहार रीजन को लीड करते हैं, यहाँ से उन्होंने अब से कुछ देर कबल जो है वो इस बारे में ऐलान किया है कि कराची से चूंकि जो है वो पूरे मुल्क के लिए सप्लाई बंद की गई है, तो खिता कोटुहार है और जीपी और कश्मीर के लिए जो सप्लाई होती है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। और आज से जो है वो ये हड़ताल की जा रही है। ओगरा की जानिब से जो कंप्लेंट गाड़ियां कहा गया है ऑयल टैंकर एसोसिएशन को कि वो जो है वो रूट पे लाई जाए, उसके खिलाफ और टैक्सों के खिलाफ जो है वो ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से जो है वो किया जा रहा है। और साथ में मुतालबात रखे गए हैं ओगरा के सामने ऑयल टैंकर एसोसिएशन में कि टैक्सेस की मद में जो रकम वसूली जाती है ओगरा या हुकूमती खजाने में जाती है, उसमें कमी की जाए, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर बाकी तमाम शोबाजात को जो है वो रिलीफ फराहम किया गया है, लेकिन ऑयल टैंकर एसोसिएशन को किसी भी किस्म का रिलीफ फराहम नहीं किया गया। तो अब जो है वो कोटवार रीजन और जीपी और कश्मीर के लिए जो सप्लाई रही थी तेल की, उसको भी बंद कर दिया गया है। शुक्रिया कामरान चौधरी। लाहौर में अपनी रहमत इंतजामिया की गफलत के सबब शहरियों के लिए जहमत बन गई। मुसलधार बारिश से गर्मी की छुट्टी तो हुई ही, साथ में बिजली भी छूमंतर हो गई। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। शहरियों के लिए आमद-ओ-रफ्त बहाल हो गई। सावन में बारिश की झड़ी लग गई। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। मेघा बरसने से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी तो हो गई, लेकिन शहरियों को कई मसाइल का सामना करना पड़ा। बंद रोड, माल रोड, गुलचंदावी, लक्ष्मी चौक, गड़ी शाहू, एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गलियां, मोहल्ले और सड़कें जोहर का मंजर पेश करने लगी। शहरियों के लिए आमदोरफ्त दुश्वार हो गई। लाहौर में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निजाम भी जवाब दे गया। लेस्को के फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक तेज बारिश और आंधी से मुतासर होने वाले फीडर्स की बहाली का काम जारी है। लाहौर में तेज बारिश से अहम शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया। सड़कों पर पानी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे नबील नकवी से। नबील नकवी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चंद मिनटों की बारिश ने लाहौर शहर की सड़कों को सैलाब बना दिया है। थोड़ी देर बारिश जो हुई उसके बाद लाहौर शहर की
पर जो मेन शाहराह पर जो गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के चौबुर्जी पर, जो लाहौर के इंतहाई अहम इशारा भी समझा जाता है। यहाँ पे आप ट्रैफिक की सूरत हाल को देख सकते हैं कि वासा की गाड़ी भी हम लोगों को यहाँ से पे काफ़ी देर से खड़ी नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का पानी काफ़ी तादाद में मौजूद है। बाइक्स बंद हो रही हैं, गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये सूरत हाल सिर्फ लाहौर के चौबुर्जी की नहीं, अगर बात दीगर लाहौर के इलाकों की की जाए तो उसमें समनाबाद के अंदरूनी एरियाज हैं, लक्ष्मी चौक है, करतबा चौक है, इन तमाम अहम शाहराहों समेत जो लाहौर की सड़कों पर इस वक्त पानी बुरी तरह फैला हुआ है। और वासा के तमाम तर दावे जो हमें उस पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर दौरे किए जाते हैं लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के, और मानसून की बारिशों के हवाले से भी खास तौर पर दौरे जो वासा काम की जानिब से किए जा रहे थे। लेकिन आज चंद मिनटों की बारिश ने वासा काम के तमाम कारकर्दगी की पोल खोल दी है। चौबुर्जी समेत लाहौर के अहम शाहराहों पे गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें सिर्फ इस वजह से लगी हुई है कि पानी खड़े होने की वजह से बाइक्स की काफ़ी बड़ी तादाद जो हमें यहाँ पे बंद नज़र आ रही है। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे जो गटर उबलते हुए नज़र आ रहे हैं वो भी वासा की कारकर्दगी का पोल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो शहरी हैं वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है, न सिर्फ इलाकों में शाहराहों में बल्कि अंदरूनी इलाकों में भी काफ़ी जो है पानी खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी शुक्रिया नबील नकवी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर के जेर इस्तेमाल 19 गाड़ियां 2 सालों में 4 करोड़ 50 लाख रुपए का पेट्रोल पी गई। महकमा एजुकेशन ने मुस्लिम लीग नून की एमपीए हिना परवेज भट्ट के मुतालबे पर रिपोर्ट पंजाब असेंबली में जमा करवा दी। मजीद जानते हैं फरहान एजाज से। जी फरहान। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली का आज के इजलास में जो है वो महकमा हायर एजुकेशन के मुतालिक जो है सवाल जवाब किए जाने थे। आज जो है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर के जेर इस्तेमाल जो है वो गाड़ियों के मुतालिक जो है रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिसमें से 19 गाड़ियां 2 सालों में तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख का पेट्रोल खा गई हैं, जिसमें जो है वो 19 गाड़ियों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस पर जो है वो 70 लाख खर्च किए गए हैं। महकमा एजुकेशन ने मुस्लिम लीग नून की जो है एमपीए हिना परवेज भट्ट के जो मुतालबे पर रिपोर्ट जमा करवाई गई है पंजाब असेंबली में, जिसमें ये मौका इख्तियार किया गया कि जो है वो गाड़ियों जो है वो तकरीबन 19 गाड़ियों पर साल में 2018 और 17 में पेट्रोल की मद में 3 करोड़ खर्च किए गए, जबकि 18 और 19 में 1 करोड़ 50 लाख खर्च किए गए। इसी तरह जो है रिपेयरिंग और मेंटेनेंस पे भी साल 2017 और 18 में 40 लाख खर्च हुए और 2018 और 19 में 30 लाख रुपए खर्च हुए, जिसकी मद में जो है वो महकमा हायर एजुकेशन की जो है गाड़ियों की मद में तकरीबन 4 करोड़ और 50 लाख रुपए जो है खर्च किए गए थे। बहुत शुक्रिया फरहान एजाज। कराची में बिजली के साथ साथ पानी का मसला भी सर उठाने लगा। शहरी बिजली और पानी ना होने से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात अता हुसैन की रिपोर्ट में देखते हैं। कराची में एक के बाद एक बहरान जन्म लेने लगा। बिजली के साथ साथ पानी भी गायब रहने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। लियाकताबाद, जमशेद रोड, PSHS समेत दीगर इलाकों में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लियाकताबाद के मकीन भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ पानी की किल्लत को भी भुगत रहे हैं। गर्मी से बेहाल खवातीन का कहना है कि बिजली और पानी न होने से घर के काम काज में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है हमारा पानी के बारे में। हम इतना बाहर भी निकलते हैं, जाते हैं, कोई कंप्लेन हमारी नहीं सुनी जाती। मस्जिदों से भर भर के पानी लेकर आते हैं बहुत दूर दूर से, और ना बच्चों के साथ बहुत परेशानी होती है। खाना बनाने में परेशानी, बाजार से खाना मंगाना पड़ता है, फिर बर्तन धोने के लिए मस्जिदों से पानी भरना पड़ता है। मकीनों का कहना है कि हम कोरोना वायरस से नहीं बल्कि दीगर मसाइल के बाइस इस जहान फानी से कूच कर जाएंगे। जब बिजली नहीं होती तो पानी भी नहीं होता है, पानी भी नहीं होता है, ऊपर से बिल इतने आ रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। 20-20, 25-25 हजार के बिल आ रहे हैं, है ना। बेरोजगारी इतनी है, बच्चे काम वाम भी नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, काम करने ही नहीं देते उन्हें। लोग कहते हैं कोरोना से मर रहे हैं, कोरोना से नहीं मरेंगे, हम भूख से मर जाएंगे। के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड इंतजामिया का एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है। दोनों इदारों की नाअहली और कप्तान का एक और खिलाड़ी फिर मायूस हो गया। आमिर लियाकत ने कौमी असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी होने के लिए वजीर आजम से मुलाकात का वक्त मांग लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली आमिर लियाकत हुसैन ने मुस्ताफी होने का इशारा दे दिया।
ट्विटर पर जारी बयान में आमिर लियाकत ने कहा, एतराफ करता हूं कि कराची का एक बेबस MNA हूं, अपने ही शहर के लोगों को बिजली फराहम करने के लिए कासिर हूं। उन्होंने लिखा कि कराची और बलखसूस अपने हलके के लोगों को तड़पना सिसकना नहीं देखा जाता। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि वक्त मांगा है, वजीर आजम से मिलकर इन्हें इस्तीफा पेश करूंगा। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना दिया तो आमिर लियाकत धरने में पेश थे। उन्होंने अपनी ही हुकूमत पर तंज के निश्तर बरसाए। वफाकी वजीर उमर अयूब पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, जब इन्हें कराची के मसाइल से आगाह किया गया तो वफाकी वजीर ने इससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत ने इससे कबल रवां साल जनवरी में भी असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का अंदिया दिया था। उन्होंने कहा था कि मसाइल के हल के लिए कहां जाएं, वुज़रा अपनी ही अराकीन कौमी असेंबली को जवाब देने के लिए रवादार नहीं तो अवाम को क्या खाक रिलीफ देंगे। हालात यही रहे तो कम अज कम मैं अपनी निशस्त से इस्तीफा देने में जरा भी देर नहीं करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में गर्दिशी कर्जों का हजम मुसलसल बढ़ रहा है। 30 जून 2019 से 30 जून 2020 तक गर्दिशी कर्जे 2150 अरब तक पहुंच गए हैं। कामरान चौधरी रिपोर्ट करेंगे। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों में मुसलसल इजाफा जारी। तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता एक साल के दौरान गर्दिशी कर्ज 2150 अरब रुपए तक पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक तवानाई की मद में दी गई सब्सिडीज एडजस्ट करने के बाद गुज़िश्ता माली साल जुलाई ta दिसंबर के अरसे के दौरान गर्दिशी कर्ज में होने वाला इजाफा 17 अरब रुपए माहाना था, जबकि गर्दिशी कर्ज में इजाफे पर हुकूमती दावा 10 अरब रुपए माहाना तक था। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई 6 माह में तवानाई की सब्सिडीज की मद में 73 अरब रुपए अदा किए, मगर तवानाई के शोबे की सूरत हाल पिछले एक साल में बिजली के नरखों में इजाफे की सूरत में सारिफीन पर 400 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डालने के बावजूद खराब है। वजारत तवानाई के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई 6 माह में गर्दिशी कर्ज में इजाफा 39 अरब से 15 अरब रुपए माहाना पर आ गया था और अब गुज़िश्ता माली साल के आखिरी 6 माह के दौरान गर्दिशी कर्जों में तकरीबन 450 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। 30 जून 2019 तक तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों की शरह 1600 अरब रुपए से बढ़कर 30 जून 2020 तक 2150 अरब रुपए तक पहुंच गई है, जिसके बाद एक साल में पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 550 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक IPP सरकारी बिजली घरों को अदायगियों की मद में 1150 अरब रुपए के बकाया जात अदा करने हैं। ज़राए का दावा है कि कर्जों में बैंकों से कर्ज की मद में ली गई रकम 1000 अरब रुपए से जायद की है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि वजीर आजम के इक़दामात का महवर कमजोर तबका होता है। हुकूमत पुरअज़्म हो तो मसाइल से निपटने की कोशिश करती है। तामीराती शोबे में 400 अरब रुपए के मंसूबे शुरू किए गए। 5 मरला घर के लिए माकअप 5% रखा गया, 10 मरला घर का माकअप 7% रखा गया। बैंक्स लेंड नहीं करते हैं क्योंकि गरीब आदमी गारंटी कहां पे देगा, गरीब आदमी कैसे उनको सेटिस्फाई करेगा उन कंडीशंस को जो कि एक बैंकर मांगता है कर्जा देने के लिए। का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है प्राइवेट सेक्टर के लिए, उसका 5% वो डेडिकेट करेंगे हाउसिंग सेक्टर के लिए, जो कि तकरीबन 330 अरब रुपए का बनता है। तो ये वो फाउंडेशंस हैं, ये वो बुनियादें हैं जो कि हमारी हुकूमत रख रही है, एक मुस्तकबिल के लिए भी, हाल के लिए भी और मुस्तकबिल के लिए भी, कि किस तरह से वो हर पाकिस्तानी जो खास तौर पे वैसे आम हालात में घर नहीं खरीद सकता, वो घर खरीद सकेगा। और इसकी जो किस्तें हैं उसको भी हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि जो उसकी कम से कम वो उसको किस्त अदा करनी पड़े और वो किस्त उसकी कैपेसिटी हो, उसमें उसको वो दे सके आसानी के साथ। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात केस के अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं नैब वाले अपने दफ्तर में कुछ कहते हैं और अदालत में कुछ बयान करते हैं। इजलाल हैदर रिपोर्ट करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मसूद आबिद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। शहबाज शरीफ बेंच के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकला की अदम दस्तयाबी के बाइस शहबाज शरीफ की जमानत में तोसी की इस्तदा की गई।
عدالت کو بتایا گیا کہ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز اور اعظم نذیر تارڑ اسلام آباد میں مصروف ہیں۔ نیب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چیف جسٹس پاکستان نے نیب کیسز جلد نمٹانے کا کہا ہے۔ شہباز شریف خود روسٹرم پر آئے اور کہا کہ ڈاکٹروں کے مشورے کے خلاف عدالت کے احترام کی خاطر عدالت میں پیش ہوا ہوں۔ مختلف فورمز پر ان کی بیماری کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، جس پر جسٹس مسعود عابد نے واضح کیا کہ عدالت کے آخری آرڈر کے مطابق آپ کو حاضری سے استثناء بھی دیا گیا تھا۔ شہباز شریف نے بینچ کو بتایا کہ نیب حکام نے آخری بار پیشی میں تسلیم کیا، ان کی تفتیش مکمل ہو گئی ہے۔ حلفاً کہتا ہوں کہ نیب کے دفتر میں 7 لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے تفتیش مکمل ہونے کا کہا، لہٰذا اب ان کی ضمانت کی درخواست پر اللہ نے یا اس عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر ان سے یکجہتی کے لیے رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ اور نون لیگی کارکنان موجود تھے، جبکہ ہائی کورٹ کے مین گیٹ پر کارکنوں اور پولیس کے درمیان دھکم پیل بھی دیکھنے میں آئی۔ کیمرہ مین محمد مبشر کے ساتھ اجلال حیدر، سچ نیوز، لاہور۔ نیب نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کو سیالکوٹ ہاؤسنگ سکینڈل کی تحقیقات کے لیے کل پھر طلب کر لیا۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف 3 جولائی کو نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے روبرو پیش ہو چکے ہیں۔ نیب خواجہ آصف کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ نیب ذرائع کے مطابق خواجہ آصف اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ اور حصول کے بارے تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ بیشتر سوالات کے جوابات پر خواجہ آصف نے لا علمی کا اظہار کیا۔ نیب ٹیم نے خواجہ آصف کو متعلقہ سوالوں کے جواب اور مکمل ریکارڈ ہمراہ لانے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں ڈاکوؤں کے گروہ صوبے کے کچے کے علاقے میں پولیس کے ساتھ گشت کرتے ہیں، جو اسلحہ پولیس کے پاس نہیں بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکوؤں کی سرپرستی کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ دیکھ لیں۔ سندھ حکومت کو شرم آنی چاہیے۔ جس انداز سے لیاری کے اندر سپورٹ حاصل تھی اس وقت کے وزراء کی، آج اور وہ جی آئی ٹی میں آ رہی ہے، آج اسی طریقے کی سپورٹ پیپلز پارٹی کے وزراء ان ڈاکوؤں کو دے رہے ہیں، اور یہ کہیں سے بھی کسی کو اغوا بھی کرا سکتے ہیں، کسی کو قتل بھی کرا سکتے ہیں، کسی کو دھمکا بھی سکتے ہیں۔ جی آئی ٹی ہو، سندھ میں کرپشن ہو، اور یہ سندھ میں ڈاکو راج ہو، سندھ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اپنے اداروں سے، وزیر اعظم پاکستان سے، آرمی چیف سے، چیف جسٹس سے، خدا رہے ڈاکو راج سے سندھ کے عوام کو نجات دلائیں، چونکہ انہوں نے نہیں دلانا۔ موجودہ حکمرانوں کی جانب سے مہنگائی کو کم کرنے کے دعوے صرف دعووں کی حد تک ہی محدود رہ گئے۔ پہلے دودھ کی قیمتیں بڑھی اور اب آٹا بھی مہنگا ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی۔ مہنگائی کا آیا ایسا طوفان کے ہو گیا زبان زدے عام۔ شہر قائد کے باسیوں کی مالی مشکلات مزید بڑھ گئی۔ پہلے دودھ کی قیمتیں بڑھا دی گئی اور اب آٹا بھی مہنگا کر دیا گیا۔ آٹا مہنگا ہونے سے عام آدمی مزید مالی پریشانیوں میں گر گیا۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ خواب اچھے دکھائے گئے تھے پر تعبیر بہت خطرناک صورت میں آ رہی ہے۔ گزارا بالکل نہیں ہو رہا، کاروبار ہے نہیں۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر چیز دن بدن مہنگی ہو جا رہی ہے۔ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے کہ غریب عوام جو محنت کش روزگار ہے، روز کمانے والے، ان کے لیے کچھ مدد کرے۔ غریب تو بیچارہ پس رہا ہے، غریب عوام کی جو بس اب ہو ہی رہا ہے گزارا، اللہ کرا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ محدود وسائل میں گھر کے اخراجات کو پورا کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اب انکم تو لوگوں کی کم ہو گئی، صحیح ہے، اوپر سے مہنگائی زیادہ ہو گئی۔ یا تو پھر مہنگائی ہوتی ہے تو انکم بھی ہو تو چلو کوئی وہ اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ اب ہر چیز ہے نا، یہ مسئلے ہیں سارے۔ سننے میں تو آیا تھا کہ بھائی نواز شریف صاحب کو بھی آزما لیا ہے، زرداری صاحب کو بھی آزما لیا ہے، چلو ان کو بھی آزما لیتے ہیں، لیکن کوئی مطمئن نہیں کیا ہے، گورنمنٹ نے کوئی مطمئن نہیں کیا ہے، اور اتنے جو ہے نا وہ امداد بھی آ رہی ہے لیکن ہم پیچھے ہی جا رہے ہیں، کوئی آگے کا وہ نہیں ہے۔ موجودہ حکمرانوں نے غریب عوام کو ریلیف دینے کے بجائے مہنگائی کی چکی تلے پسنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اشیاء خوردونوش کے ساتھ ساتھ دودھ اور آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام سخت پریشان ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ کیمرہ مین فیضان خان کے ساتھ اشرف سولنگی، سچ ٹی وی، کراچی۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی دعوے دار بلوچستان کی مخلوط حکومت کی بے حسی برقرار ہے۔ کوئٹہ میں منافع خوروں نے ایک بار پھر سرکاری نرخ نامے کو مسترد کرتے ہوئے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ عبدالغنی کاکڑ رپورٹ کریں گے۔
वादी कोयटा में जिली प्राइस कंट्रोल कमेटी की बेहिसी का फायदा उठाकर मसनूई महंगाई के जरिए आवाम की मुश्किलात में इजाफा करने वाले मुनाफाखोर माफिया ने सरकारी नरखनामे को मुस्तरद करते हुए अशय खुर्दनोश की कीमतों में एक बार फिर मनमाना इजाफा कर दिया है। शहर के अक्सर इलाकों में कायम कारोबारी मराकज में गोश्त, दालें, सब्जियां और दीगर बुनियादी जरूरत की अशिया मनपसंद नरखों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि जिली इंतजामिया ने महंगाई पर काबू पाने के दावों पर अमल दरामद के बजाय आवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ रखा है। और इन्होंने जैसे हमारे को ख्वाब दिखाया था कि नया पाकिस्तान बनेगा, ठीक है, ये होगा वो होगा, ज्यादा से ज्यादा महंगाई इन लोगों ने कर दी है। ठीक है, महंगाई कर दी है कि जहाँ हमारा एक दिन का 500 रुपए या 250 रुपए में हमारा खर्चा होता था, तो अभी हमारा एक दिन का 1000 रुपए में खर्चा हो रहा है। इतनी पैदा है नहीं जिससे ज्यादा इन लोगों ने खर्चा कर दिया। हम लोग जो प्रतिदिन के रात के 700 रुपए में काम करता है, 700 में क्या होता है? गैस का बिल दे, बिजली का बिल दे, परचून वाला को दे, घर वाला को दे, किसको दे? किराया महंगाई इतना बढ़ गया हम लोग से बाहर। कोयटा के अक्सर इलाकों में अहम कारोबारी मराकज समेत दीगर दुकानों में सरकारी नरखनामे भी अवेजा नहीं किए गए हैं। नवाज शरीफ को बोलते चोर या पीपल्स पार्टी को बोल रहे थे चोर है। उस टाइम हम लोगों को तो बोरी काटे 650 रुपए मिल रहा था, अभी 1150 रुपए में मिल रहे हैं। पति तो 400 रुपए में मिल रहा था, अभी 800 रुपए हम लोगों को मिल रहे हैं। ग्राहक हम लोग जो बोल रहे हैं हम लोगों को गाली दे के चला जा रहे, बोल रहे तुम 800 रुपए का पति है। अभी क्या करें, हम लोग खुद परेशान है। ऐसा तो आवाम जलील हो जाएगा। आवाम के लिए आवाजें लगा रहे हैं, हुकूमत आवाम के लिए आवाजें लगा रहे, लेकिन ये उसका समझ में नहीं आ रहा है कि आवाम तक ये आवाज पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, आवाम का मसाइल हल हुआ है या नहीं हुआ है। बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए कोयटा में जिली प्राइस कंट्रोल कमेटी भी बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। चीनी मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के लिए कानूनी शिकंजा तैयार हो गया। पंजाब हुकूमत ने नया ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। ऑर्डिनेंस में तजवीज करदा सजा के मुताबिक चीनी की जखीरा अंदोजी मुनाफाखोरी में मुलव्विस शख्स को 3 साल की सजा तजवीज कर दी गई है। इसी पे मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा नबील नकवी से। जी नबील नकवी, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से चीन की कीमतें कंट्रोल रखने और मुनाफाखोरों को रोकने के लिए इंतहाई अहम कदम ले लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने चीनी पर सट्टेबाजी और जखीरा अंदोजी के लिए ऑर्डिनेंस जो है वो तैयार कर लिया। जबकि ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीनी की जखीरा अंदोजी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी में मुलव्विस शख्स को 3 साल की कैद जो है वो भुगतना होगी। जबकि जब्त किए गए माल का 50% जुर्माना जो है वो भी अदा करना पड़ेगा। जबकि कीमतों में उतार चढ़ाव में मदद करने वालों को भी 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जो जुर्माना देना पड़ेगा। जबकि छापे के दौरान गोदाम से पकड़े जाने वाले अफराद 6 माह से 1 साल तक की सजा और 1 से 5 लाख रुपए तक का उनको भी जुर्माना जो अदा किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीनी की जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी और सट्टेबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म से वो जो तस्वुर किया जाएगा। जबकि कंपनी या इदारे के मुलव्विस होने की सूरत में तमाम डायरेक्टर्स, मुश्तरका मालकान और अफसरान जिम्मेदार तस्वुर होंगे। जबकि ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीनी का कारोबार करने वाला स्टॉक की मुकम्मल तफसील डिप्टी कमिश्नर को देने के जो है पाबंद होंगे। जबकि ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीनी की पैदावार, स्टॉक, खरीदारी, बरामद और दरामद का तमाम रिकॉर्ड देना होगा। जबकि मुकर्रर वक्त में स्टॉक ना उठाने की सूरत में चीनी की कीमत में रद्दोबदल का जिम्मेदार भी तस्वुर किया जाएगा। जबकि ऑर्डिनेंस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर तमाम स्टॉक कब्जे में लेकर नीलामी करवाने का जो मजाज होगा। जबकि 30 दिन के अंदर केस का ट्रायल मुकम्मल किया जाएगा और ऑर्डिनेंस के तहत जो वो सजा दी जाएगी। जबकि चीनी की खरीदारी पर 15 दिन के अंदर जो स्टॉक उठाना होगा। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, बच्चे की जान बचाते हुए मां ने अपनी जान दे दी। गुजरा में बच्चा गिरने पर मां ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। खातून जाँ बहक जबकि बच्चा शदीद जख्मी हो गया। आपको अपडेट करेंगे, बच्चे की जान बचाते हुए मां ने अपनी जान दे दी। गुजरा में बच्चा गिरने पर मां ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। खातून जाँ बहक जबकि बच्चा शदीद जख्मी हो गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुजरांवाला में कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट्स और फूड यूनिट्स को लाखों रुपए जुर्माने आयद कर दिए। जुर्माने गैर मयारी अशिया इस्तेमाल करने पर किए गए।
डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन की हिदायत पर गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्टोरेंट और फास्ट फूड यूनिट्स की चेकिंग की गई। दौरान चेकिंग 5 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। जायदुल मायाद अशिया के इस्तेमाल पर निजी होटल को 1 लाख, कामुकी में रेस्टोरेंट को 50,000, जबकि कीड़े और मक्खियों की बहतात पर बैतुल मंडी को 70,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। जायदुल मायाद अज्जा से बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने पर 2 यूनिट्स को 1,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। डीजी इरफान मेमन का कहना था कि गैर मायारी खुराक का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी शहरियों की जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पेशावर में मवेशी मंडियां तो सज गई, लेकिन खरीदार ना होने के बराबर हैं। मजीद जानते हैं वाजिद शहजाद से जो इस वक्त काला मंडी में मौजूद हैं। जी वाजिद, पेशावर में मवेशी मंडियां सज गए। अजब पेशावर में ईद कुर्बान के करीब आते ही मवेशी मंडियां जो है वो सजाई गई हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल जो है मंडी में काफ़ी कमी देखने को आ रही है। अगर मेरा कैमरामैन बताते चले तो मैं काला मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मनाजिर आपको दिखाते चलें तो ईद को 10 से 12 दिन जो है वो बाकी रह गए हैं, लेकिन शहरी जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, ख़रीदार यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। मगर अगर रेट के हवाले से बात की जाए तो रेट जो है इंतहाई तेज़ नज़र आ रहे हैं। जो पिछले साल जानवर जो है 1.5 से 2 लाख रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा था, अब जो है वो 3 से 4 लाख रुपए तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो लाख रुपए का जानवर था वो 1.5 से 1,60,000 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी जो है यहाँ पे नज़र नहीं आ पा रहे। एक तो गर्मी की वजह है, दूसरी तरफ अगर SOPs की बात की जाए तो देखने में यही आ रहा है कि जो SOPs हैं वहाँ पे यहाँ पे सैनिटाइज़र गेट लगाया गया है, मास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मास्क पहनने के बाद अंदर मंडी में छोड़ा जा रहा है। व्यापारी जो है यहाँ पर मास्क इस्तेमाल किए बगैर नज़र आ रहे हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। व्यापारी यहाँ पे SOPs को मानने से भी इनकारे हैं। अगर इसके अलावा जो मैं काला मंडी के हवाले से बताता चलूँ तो जो इंतज़ामात हैं यहाँ पर ना होने की ही बराबर हैं। इसी वजह से कोरोना वबा की जो ख़दशा है वो भी पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर काला मंडी के हवाले से मज़ीद बताता चलूँ तो यहाँ पर रिंग रोड की निस्बत जो रिंग रोड की मंडी है वहाँ पे रेट जो है वो काफ़ी तेज़ हैं, लेकिन रेट के जो है यहाँ पर भी वैसे ही रेट चल रहे हैं। लेकिन जो छोटे जानवर हैं काला मंडी में, वो छोटे जानवरों के जो रेट हैं वो नुमाया उनमें कमी जो है देखने में आ रही है। जी बहुत शुक्रिया वाजिद शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। क्रिकेट सीरीज के लिए इंग्लैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड के एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। टीम इंतजामिया के मुताबिक खिलाड़ी काशिफ भट्टी को दीगर खिलाड़ियों से अलग कर दिया गया है। खुसूसी तैयारी के जरिए 20 खिलाड़ियों का पहला दस्ता जून के आखिरी हफ्ते में इंग्लैंड पहुंचा था, जिसके बाद जुलाई के पहले हफ्ते में 6 मजीद खिलाड़ी इंग्लैंड पहुंचे। 8 जुलाई को मसाजिर मलंग अली के साथ 3 खिलाड़ी इमरान खान, हैदर अली और काशिफ भट्टी जब इंग्लैंड पहुंचे तो उनका इंग्लैंड में कोरोना टेस्ट लिया गया। काशिफ भट्टी का टेस्ट मुस्बत आ गया। वोस्टर में उन्हें टीम होटल में दीगर खिलाड़ियों से अलहदा रखा गया। 13 जुलाई को टीम ने वोस्टर से डर्बी के लिए सफर किया तो इन 4 अफराद ने अलहदा गाड़ी में सफर किया। अलबत्ता डर्बी पहुंचने के बाद इमरान खान, हैदर अली और मसाजिर मलंग अली टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ ग्राउंड जा रहे हैं। ताहम काशिफ भट्टी बदस्तूर करंतना में है। 14 साल कबल 2006 में कौमी टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने बरतानवी टीम की वो दुर्गत बनाई जिसकी यादें आज भी ताजा हैं। Shot. That was nicely played by Mohamed Yusuf, and that's taken him to 100 if he can get back for 3. In fact, it's gone all the way for 4. And a gorgeous 100 by Mohamed Yusuf. Stylish. He kisses the ground. Of course, he's a Christian who converted to Islam. Pulled away by, that was too short. That's fabulous. Great use of the feet. Oh, he's down the pitch and just giving it one hell of a belt. Going down the wicket, he's just streakily avoided the keeper, and that is a very streaky way to get to his double century, the 4th of his career. He's going to kiss the ground. तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी ने कहा कि ईद पर कोरोना केसेस में 430% इजाफा हुआ था। अवाम ईद उल अज़हा पर एहतियात करे, SOPs के खिलाफ वर्जी पर शहरियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पाकिस्तान में जो सर्ज आया हमारा कोरोना का, वो ईद पे आया।
ईद पे लोगों ने एसओपीज को वायलेट किया, एसओपीज के उन्होंने ख्याल नहीं रखे और भीड़ की शक्ल इख्तियार कर ली। पहले मार्केट्स में, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट असना में खुला, फिर लोग अपने अपने देहातों में चले गए, एसओपीज को वायलेट किया। तो ईद हमारा एक मुकद्दस एक फेस्टिविटी है, फेस्टिवल है हमारा, उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम खुशियां मनाते हैं। लेकिन ईद के इस पुरमसरत मौके को हम एक सर्च का जो एक नया सर्च हा सकता है उसका बायस ना बने। बच्चे और बुजुर्ग जो है वो मवेशी मंडी में इंटर नहीं हो सकते। स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स हमने अपॉइंट कर लिए हैं, वहां पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा, मास्क होगा और मिनिमम जो 1 मीटर की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हर हाल में हमने मेक श्योर करना है। वहां पर हमारे जो सरकारी एहलकार है वो मौजूद होंगे और कोई एसओपीज की अगर वायलेशन करती है तो फिर हम अरेस्ट। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा मरीजों में कमी आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 40 अफराद जान की बाजी हार गए। 1,78,735 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में 2,145 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना का चिन काबू में आने लगा और केसेस की तादाद में नुमाया कमी आ रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद एक्टिव केसेस से ज्यादा है और ताहाल 1,78,735 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 73,751 है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 2,145 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस की तादाद 2,57,914 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 40 अफराद जाम बहक हो गए। वायरस से जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 5,426 हो गई। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 1,08,913, पंजाब में 88,939, खैबर पख्तूनख्वा में 31,217, बलोचिस्तान में 11,322, इस्लामाबाद में 14,402, आजाद जम्मू कश्मीर में 1,771 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1,750 हो गई है। दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग जीतने लगी। अमेरिका, बरतानिया और रूस में कोरोना वैक्सीन के कामयाब ट्रायल के दावों के बाद मुहलिक वायरस से बचाव की उम्मीदें बढ़ने लगी। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन और फार्मा कंपनी ऑस्ट्राजेनिका के इश्तराक से बनाई गई वैक्सीन का तजुर्बा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन मरीजों में एंटीबॉडीज और टी सेल्स पैदा करने में कामयाब रही। बरतानवी साइंसदानों ने 80% उम्मीद जाहिर की कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सितंबर तक आ जाएगी। अमरीकी दवासाज कंपनी मॉडर्ना का कहना है कि उनकी तैयार करदा कोरोना वैक्सीन 27 जुलाई से इंसानों पर तजर्बे के आखिरी मराहिल में दाखिल हो जाएगी। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन को 30,000 अफराद पर टेस्ट करने का इरादा रखते हैं। तजर्बात अक्टूबर 2022 तक जारी रखे जाएंगे। रूसी फौज ने भी महफूज वैक्सीन के कामयाब इंसानी ट्रायल का दावा किया है। रूसी वजीर दिफा के मुताबिक कोरोना से मुतालिक वैक्सीन के तहकीकाती तजर्बे में 18 रजाकारों ने हिस्सा लिया जो बगैर किसी पेचीदगियों के डिस्चार्ज कर दिए गए थे। चीन की शराकत से ब्राजील में कोरोना वैक्सीन के तजर्बात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। हजारों रजाकारों पर वैक्सीन की आजमाइश भी की जा चुकी। चीन भी दुनिया की तीसरी वैक्सीन की तैयारियों में मसरूफ है। आलमी निज़ाम मईशत पर कोरोना के साए बरकरार हैं। बहाली की अलामात जरूर जाहिर हुई लेकिन मुश्किल वक्त अभी बाकी है। G20 ममालिक के 11 खरब डॉलर के पैकेज ने बदतरीन नताइज से महफूज रखा। आलमी इदारा मालियात ने हुकूमतों से इमदादी पैकेज जारी रखने की अपील कर दी। IMF के सरबराह क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा ने G20 ममालिक के वुज़राए खजाना के नाम पैगाम में कहा कि आलमी मईशत अब भी चैलेंजेस की जद में है। मुहलिक वबा की दूसरी लहर का भी इम्कान है। सरबराह IMF ने दुनिया भर की हुकूमतों पर इमदादी प्रोग्राम जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खदशा है रवां साल मजमूई कौमी पैदावार में 4.9% की कमी आएगी। अगले साल के लिए बहाली हो पाएगी। जॉर्जिवा ने कहा कि G20 ममालिक की जानिब से 11 खरब डॉलर के पैकेज से बदतरीन नताइज से महफूज रहने में मदद मिली। कोरोना के बायस खौफ के बादल छटने लगे। सऊदी अरब में जिंदगी मामूल की जानिब लौटने लगी। सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने तफरीही सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन ने कोरोना वबा की वजह से तातुल का शिकार तफरीही मराकज की सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में पुरअमन और महफूज तफरी हैशटैग के उन्वान से सोशल मीडिया पर एक मुहिम भी शुरू की गई है जिसमें शहरियों को तफरीही सरगर्मियों की बहाली के हवाले से इतलात दी जा रही हैं। इस मुहिम के तहत मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में होने वाली तफरीही सरगर्मियों की तफसीलात भी बताई जाएंगी। सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने तफरीही सरगर्मियों की बहाली के लिए SOPs भी वाज़ेह कर दिए ताकि कोरोना की वबा के खतरात की रोकथाम की जा सके। तफरीही सरगर्मियों के दौरान समाजी फासला, मास्क पहनना, मुकर्रर करदा रास्तों पर चलना और तफरीही सरगर्मियों का तयन करना और बाहिमी फासला कायम रखना जैसी शराइत शामिल हैं।
چین کا صوبہ ہوبئی دہائیوں کے بعد بدترین سیلاب کی زد میں ہے. شدید بارشوں سے آنے والے سیلاب سے ملک کا بڑا علاقہ زیر آب آ گیا. کروڑوں افراد متاثر ہوئے. سیلاب سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں. پہلے عالمی وبا کورونا کے وار، پھر سیلاب. چینی صوبے ہوبئی کو ایک بار پھر تباہی کا سامنا کرنا پڑا. لاکھوں مکین انخلا پر مجبور ہو گئے. 28,000 سے زائد مکانات صفائی ہستی سے مٹ گئے. پانی کی بے رحم لہریں کھیتوں کے کھیت نکل گئی. لاکھوں ایکڑ رقبہ زیر آب ہے. متاثرہ علاقوں میں پھنسے افراد کی مدد کے لیے ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا گیا. لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء اور دوسرا ضروری سامان پہنچایا گیا. اب تک 150 سے زائد افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں. متعدد لاپتہ ہو گئے. غیر معمولی بارشوں سے چین کے 33 دریا بھر چکے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کا خدشہ ظاہر کر دیا. فوج اور امدادی ادارے دریاؤں پر بند باندھنے کے علاوہ متاثرین تک خوراک سمیت دیگر ضروری اشیاء پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس سیلاب کو دہائیوں کا بدترین سیلاب کہا جا رہا ہے. سعودی شہر جدہ کے آبی عجائب گھر نے سیاحوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی. عجائب گھر 7,000 سے زائد سمندری مخلوقات اور بحری عجائبات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سچ نیوز.